exercise number 9.1 from the topic applications of trigonometry. So let us start the session. So the first question given is a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. और यहाँ पे हमें एक फिगर भी दी हुई है, तो पहले हम लोग वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो इट इज गिवन दैट अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope. So this is the 20-meter long rope, that is AC is the 20-meter long rope, and this rope is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. So this is the pole, तो इसको नाम दे देता हूं मैं AB, and this is the top of the pole. करेक्ट, तो यहां से ग्राउंड को अटैच किया है इस रोप को विच इज 20 मीटर लॉन्ग. उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. सो दिस रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड AB. करेक्ट, तो पहले हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, दैट इज लेट AB is equal to height of pole. Next, AC is equal to length of rope. And what we need to find? We need to find this AB. ठीक है, अब यहाँ पर एंगल हमें पता है 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री के लिए ये क्या है, इट इज एन अपोजिट साइड. करेक्ट, और ये है हाइपोटेनियस. करेक्ट, सो अपोजिट और हाइपोटेनियस आने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन. सो वी कैन टेक साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज AB and the hypotenuse is AC. We have sin 30 as 1/2 and this is equal to, we need to find AB and AC is 20. So therefore we have AB is equal to 20 divided by 2, and therefore we have AB is equal to 10 meter. और AB क्या है, it is nothing but the height of pole. So we can write height of pole is 10 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, इजी है. So the next question given is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, a tree breaks due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. तो पहले accordingly फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. So suppose this is the tree and this tree stands on the ground. ठीक है, and due to storm this tree breaks. और टूटने की वजह से क्या हो रहा है, this top touches the ground. तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये ट्री यहां से टूट रहा है और ये जो टॉप है यहां से कहां पर आ जा रहा है, इट इज टचिंग द ग्राउंड. करेक्ट, ये समझ में आ रहा है, ड्यू टू स्टॉर्म दिस ट्री ब्रेक्स. और टूटने के बाद सपोज ये यहां से टूट रहा है, तो ये जो टॉप है वो क्या हो रहा है, इट इज टचिंग द ग्राउंड. यहां तक क्लियर है. उसके बाद एंड दिस टॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये भी बोला गया है. उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. So this is the foot of the tree and this is the top of the tree. और हमें क्या दिया हुआ है, the distance between these two points is 8 meter. Correct? तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, this is 8 meter. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, we need to find the height of the tree. ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग नाम दे देते हैं. Suppose this is point A, this is B, this is C and this is D. And this tree stands vertically on the ground, means this angle is 90 degree.
ठीक है, नाउ लेट AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री एंड CD is equal to distance between foot of the tree and the top of tree where it touches the ground. ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 8 मीटर। यहां तक समझ में आ रहा है। नाउ आई कैन ऑल्सो राइट दिस AB इज इक्वल टू BD, करेक्ट है। अब ये जो इतना पार्ट टूटा हुआ है वो ही ऐसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब आई कैन राइट AB इज इक्वल टू BD। यहां तक क्लियर है। और हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो मैं AC को ऐसे लिख सकता हूं, AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, करेक्ट। AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC। नाउ वी नो दैट दिस AB इज नथिंग बट BD, ये हमने अभी लिखा है, सो आई कैन राइट दिस एज BD प्लस BC। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ रहा है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे हमें ये एंगल पता है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस पता है 8 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर BC एंड BD। तो BC फाइंड आउट करने के लिए ये 30 डिग्री के लिए कौन सी साइड है, अपोजिट साइड, और ये है एडजेसेंट साइड। तो वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan। सो वी हैव tan 30 degree is equal to opposite side upon adjacent side, and this is equal to 30 के लिए opposite है BC divided by adjacent है CD, correct। And we know that tan 30 is 1 by root 3, and this is equal to BC divided by CD is 8. So we have BC is equal to 8 upon root 3. इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, so we have √3 divided by √3, so we have BC is equal to 8√3 divided by 3 मीटर, ठीक है। अब AC निकालने के लिए BC रिक्वायर्ड था, जो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है BD, ठीक है। तो BD मतलब क्या है, दिस इज द हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 30 डिग्री is equal to opposite side upon hypotenuse। 30 के लिए opposite side is BC and hypotenuse is BD। तो यहां पर लिख देता हूं BD। We know that sin 30 is 1 by 2 and this is equal to what is BC, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो यहां पर लिख देता हूं this is 8√3 divided by 3 and we need to find this BD। तो यहां पर रह जाएगा BD। So therefore we have BD is equal to 8 to the 16√3 divided by 3 and meter। BC आ गया है, BD आ गया है। Now we can easily find AC। Now from equation number 2 we have AC is equal to BD plus BC। So ये हो जाएगा BD plus BC, correct। So AC becomes equal to BD is 16√3 divided by 3 plus BC is 8√3 divided by 3 and this is equal to, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर की हम लोग डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। So we have 16√3 plus 8√3, तो ये कितना हो जाएगा, 24√3 divided by 3, correct। So therefore we have this as equal to 3 8s are 24, so AC is equal to 8√3 meter and this is nothing but the height of the tree, ये हमने यहाँ पर नोट किया है। So therefore we have got
the height of the tree, height of tree as 8√3 मीटर। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? यहां पर ये फिगर समझना जरूरी है। ड्यू टू स्टॉर्म द ट्री ब्रेक्स एट दिस पॉइंट एंड द टॉप ऑफ दिस ट्री टचेस द ग्राउंड एट दिस पॉइंट D and the angle made is 30 degree. The distance between the foot of the tree and the top of the tree where it touches the ground is 8 मीटर। एक बार आपको फिगर समझ में आ गई तो आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये प्रॉब्लम? द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ठीक है, तो सपोज ये स्लाइड है एंड द टॉप ऑफ दिस स्लाइड इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, so this height is 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. So this slide is inclined at an angle of 30 degree to the ground. यहाँ तक clear है? And this is for the children below 5 years. Correct? And for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. For elder children, the top of the slide is at a height of 3 meter. ठीक है? And the slide is inclined at an angle of 60 degree to the ground. So this angle is 60 degree. ठीक है? And what we need to do? We need to find the length of slide in each case. ठीक है, तो पहले हम लोग यहां पर नाम दे देते हैं कुछ। So this slide is for elder children. इसको मैं नाम दे देता हूं A, B, C एंड इसको नाम दे देता हूं P, Q, R। ठीक है, दोनों केस में हमें क्या करना है? We need to find the length of the slide. तो इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड है AC और इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड है PR। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सो फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, we have AC as length of slide. करेक्ट? तो अब AC कैसे फाइंड आउट करोगे आप? अब अगर आप यहां पर देखोगे तो 30 के लिए ये अपोजिट साइड है एंड फॉर दिस ट्रायंगल इट इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब AC हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है? sin 30। सो वी हैव sin 30 एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा AB upon AC. Correct? We have sin 30 as 1/2 and this is equal to AB is 1.5 and we need to find AC. So therefore we have AC is equal to 1.5 into 2 कितना हो जाएगा? 3 meter. So therefore length of slide for children below 5 years is 3 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस का आंसर मिल गया। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। करेक्ट? और एल्डर चिल्ड्रन के लिए हमने लेंथ ऑफ स्लाइड का क्या कंसीडर किया है?
we have considered it as PR, correct? So for elder children, PR is equal to length of slide, correct? फिर से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, दैट इज साइन. सो वी हैव साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज इक्वल टू, फॉर दिस 60 अपोजिट साइड इज PQ and the hypotenuse is PR, correct? So therefore we have sin 60 की वैल्यू है √3/2 and this is equal to PQ कितना है? PQ is 3 and we need to find PR. तो ये हो जाएगा PR is equal to 3 into 2 is 6 divided by √3. तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. So this can be written as √3/√3, correct? So we have PR is equal to 6 √3 divided by √3 into √3 is 3, correct? So therefore we have PR is equal to 2 √3. 3 ones are 3 twos are. So this becomes 2 √3 meter. That means we can write length of slide for elder children is 2 √3 मीटर. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? इजी है. पहले हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये दो फिगर्स ड्रॉ किए हैं. उसके बाद वी हैव अप्लाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन. फर्स्ट केस में sin 30 और सेकंड केस में sin of 60 डिग्री. क्लियर है ये प्रॉब्लम? द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. So what is given? The angle of elevation of top of the tower from the point on the ground. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये है ग्राउंड और ये है टावर. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. इसका मतलब इन दोनों में का डिस्टेंस हमें दिया गया है and it is 30 meter, correct? And the angle of elevation is given as 30 degree. तो ये बन जाएगा 30 डिग्री. तो इसको पहले नाम दे देते हैं A, B and C. फिगर समझ में आ रही है आपको? क्या दिया गया है यहाँ पर? This AB is the tower and there is a point C which is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. ठीक है? And from this point C, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find the height of the tower. ठीक है? तो पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. Let AB is equal to height of tower and this BC is equal to distance between the foot of the tower and point C. ठीक है? और हमें यहां पर क्या दिया हुआ है? BC is 30 मीटर. ठीक है? अब ये 30 डिग्री के लिए AB क्या है? इट इज द अपोजिट साइड. और ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड. मतलब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है? वी नीड टू अप्लाई tan, करेक्ट? सो वी हैव tan of 30 डिग्री is equal to opposite side upon adjacent side, and opposite side is AB and the adjacent side is BC. अब tan 30 कितना है? It is 1/√3 and this is equal to opposite side कौन सी है यहाँ पर? AB जो हमें फाइंड आउट करना है and BC is 30. So therefore we have AB is equal to, ये क्या हो जाएगा? 30 divided by √3, करेक्ट? सो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. सो दिस इज √3/√3. तो ये हो जाएगा AB is equal to
30√3 divided by √3 into √3 is 3. Correct? So this is 3 ones are 3 tens are. So we have AB is equal to 10√3 meter. और AB क्या है? It is nothing but the height of the tower. So therefore we can write height of tower is 10√3 meter. समझ में आ गया प्रॉब्लम? इजी है. The next question given is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो ये है ground and the kite is flying 60 meter above the ground. तो suppose kite की position यहाँ पर है and it is at a height of 60 meter from the ground. उसके बाद क्या बोला गया है? The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. तो यहाँ पर एक string attached है and it is temporarily attached to a point on the ground. तो suppose वो यहाँ पर attached है, ठीक है? The inclination of the string with the ground is 60 degree. So this is the string and the inclination with the ground is given as 60 degree. ठीक है? Find the length of the string. मतलब हमें ये string की length find out करना है. Assuming there is no slack in the string. There is no slack in the string मतलब क्या है? ये string क्या है? It is in tight position या in taut position. ठीक है? तो हमें पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देना है ABC. ठीक है? And this angle is 90 degree because it is the height. Correct? तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मींस वी नीड टू फाइंड AC. ठीक है? तो पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड and AC is equal to length of string जो हमें फाइंड आउट करना है. करेक्ट? और ये AB कितना दिया हुआ है? इट इज 60 मीटर and the inclination of this string with the ground is 60 degree. अब इस 60 डिग्री के लिए ये साइड है अपोजिट साइड और AC है हाइपोटेनियस फॉर दिस ट्रायंगल. तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस आने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन. सो वी कैन टेक साइन ऑफ 60 डिग्री एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AC. करेक्ट? साइन 60 इज √3/2 और ये कितना हो जाएगा? AB इज 60 डिवाइडेड बाय वी नीड टू फाइंड AC. तो दिस विल बी AC is equal to 60 into 2 that is 120 divided by √3. ये AC ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, 60 into 2 is 120. फिर से इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. So this will be √3 divided by √3 and this is equal to 120 √3 divided by √3 into 3 is √3 into √3 is 3 and this is equal to 3 ones are 340s are. So we have AC is equal to 40 √3 meter. और ये AC क्या है? It is nothing but the length of the string. So therefore we can write length of string is 40 √3 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? So the next question given is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर.
तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो यहाँ पर पहले हम कंसिडर करते हैं ग्राउंड, और ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय एंड ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये है बॉय की आंखें और ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, एज द बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। करेक्ट। अब यहां पे क्या बोला गया है, suppose the angle of elevation in the initial stage is 30 degree and as he walks towards the building the angle of elevation increases from 30 to 60। तो suppose यहां पर आने के बाद angle of elevation हो जा रहा है 60 डिग्री, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, we need to find the distance he walked towards the building। मतलब अगर suppose मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सो सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ई, एफ एंड ये है सपोज जी। यहां तक क्लियर है। अब हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, EF is nothing but height of observer, correct, and it is nothing but 1.5 meter। उसके बाद the height of the building is given, height of building is nothing but AC and it is equal to 30 meter। तो वो भी मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, height of building is equal to 30 meter। ठीक है, and what we need to find, we need to find this distance DE। वो यहां से यहां तक चला है, so that the angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree, और हमें यही distance find out करना है। प्रॉब्लम क्लियर है ना। This angle is 90 degree because the observer stands vertically on the ground and this building also stands vertically on the ground। This means this angle is also 90, और ये भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो ये भी 90 हो गया। यहां तक क्लियर है ना। दिस EF is parallel to BC क्योंकि दोनों भी परपेंडिकुलर है, और ये EC भी पैरेलल है BF को क्योंकि ये हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, मतलब we have drawn a line parallel to the ground, correct। तो opposite sides are parallel to each other and angle is 90 degree, that means it is a rectangle, और rectangle है मतलब opposite sides are equal in length, correct। so therefore we can write, ध्यान देना है यहाँ पर अभी, EF is equal to BC is equal to 1.5 meter, correct। this EF is equal to BC is equal to 1.5 meter and we can write EC is equal to FB, correct। ये भी समझ में आ रहा है। we can write this EC is equal to FB। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। now we can write AB as AC minus BC, correct। we can write AB as AC minus BC। we have AC as 30 and BC हमने यहां पर लिखा है as 1.5, so this can be written as 28.5 meter, correct। so therefore we have AB as 28.5 meter। अब अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे, मतलब ट्रायंगल AGB, तो ये एंगल 90 डिग्री है
आपको ए बी पता है 28.5 एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस ए जी फ्रॉम दिस, करेक्ट। एक ट्रायंगल में आपको ये पता है 60 डिग्री, ये पता है 28.5, तो आप ए जी फाइंड आउट कर सकते हो और बी जी भी फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद अगर आप ट्रायंगल लेते हो ए बी एफ, तो आपको यहां पर ए बी पता है 28.5 एंड ये एंगल पता है 30 डिग्री, तो आप यहां से ए एफ भी फाइंड आउट कर सकते हो और बी एफ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, डीई रिक्वायर्ड है। डीई रिक्वायर्ड है मतलब जीएफ रिक्वायर्ड है, करेक्ट, बिकॉज दीज टू आर इक्वल इन लेंथ। तो डीई रिक्वायर्ड है मतलब जीएफ रिक्वायर्ड है। अब जीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बीएफ माइनस बीजी, करेक्ट। जीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बीएफ माइनस बीजी, करेक्ट। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं बीजी फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी जी, करेक्ट। तो मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी जी इफ वी कंसिडर tan of 60 degree we can write the formula as opposite by adjacent, और 60 के लिए अपोजिट है AB और एडजेसेंट है BG, करेक्ट। वी हैव tan 60 as √3 एंड दिस इज इक्वल टू AB, अब भी हमने फाइंड आउट किया है, इट इज 28.5 और BG हमें फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर वी हैव BG इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स √3 बाय √3 एंड BG becomes equal to 28.5 √3 divided by √3 into √3 is 3 मीटर। यहां तक क्लियर है, BG मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं BF। तो BF के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABF, करेक्ट। So if we consider triangle ABF and apply tan 30, we have ये 30 के लिए अपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड BF, करेक्ट। So we have tan 30 as 1 by √3 and this is equal to 28.5 divided by BF, correct. So from this we can write BF is equal to 28.5 √3 मीटर। अब हमारे पास BG आ गया है और BF भी आ गया है। So from this we can easily find this GF, correct. So therefore we have GF as GF कैसे लिख सकते हैं हम, BF minus BG, correct. So this is BF minus BG and this is equal to BF कितना है, it is 28.5 √3 minus BG is 28.5 √3 divided by 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव GF as equal to, यहां पर भी 28.5 √3 है और यहां पर भी 28.5 √3 है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं 28.5 √3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 माइनस यहां से 1/3, so this will be 1 minus 1/3 and this is equal to 28.5 √3 into 3 into 1 3 minus 1 is 2 divided by 3। तो this will be equal to 28 into 2 is 56, मतलब ये हो जाएगा 57 √3 divided by 3 and this becomes equal to 19 √3। तो ये आ गया है GF और GF कितना आ गया है 19 √3 मीटर। और GF का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज DE, करेक्ट। सो देयरफॉर वी कैन राइट DE इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। और ये DE क्या है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, करेक्ट। सो देयरफॉर फाइनल आंसर मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, डिस्टेंस वॉक्ड बाय
the boy towards the building is 19√3 मीटर। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? इजी है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हमें क्या दिया गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर करते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है विच इज 20 मीटर हाई। तो ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 20 मीटर। उसके बाद इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। सो सपोज दिस इज द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, दिस इज द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यहां तक क्लियर है? ये है ग्राउंड पे का पॉइंट, ये है 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और ये है बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। करेक्ट। और इस पॉइंट से ये बॉटम और टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब यहां से अगर आप कंसीडर करते हो तो ये है लाइन ऑफ साइट फॉर द बॉटम, और ये है लाइन ऑफ साइट फॉर द टॉप, एंड दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट इज गिवन एज 45 डिग्री, और ये दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो दिस इज द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, एंड दिस इज द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find the height of the tower। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C and D, तो हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। मींस वी नीड टू फाइंड दिस AB। ठीक है, तो पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूं मैं। लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट BC is equal to height of building। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, एंड दिस इज गिवन एज 20 मीटर। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज द बिल्डिंग स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ये है 90 डिग्री। अब अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करते हो, ट्रायंगल BCD, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल BCD वी नो दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, और हमें ये BC पता है। करेक्ट, सो वी कैन राइट tan of 45 as BC upon DC। करेक्ट, यहां पर ध्यान देना है, वी कैन राइट tan of 45 डिग्री as opposite side upon adjacent side, and this is nothing but BC upon BC or CD। Now we have tan 45 as 1 and this is equal to BC हमें दिया गया है 20। So from this we can easily write CD as 20 meter। Clear है? CD आ गया 20 meter। Now if we consider triangle ACD, we have in triangle ACD we can write tan of 60 is equal to opposite side upon adjacent। 60 के लिए opposite side कौन सी है? ये है एंगल 60। opposite side is AC, so we have AC divided by CD। correct, tan 60 is √3 and this is equal to AC हमें find out करना है and CD can be written as 20। ये हमने यहाँ पर find out किया है। so therefore we have
AC is equal to 20√3। अब हमें AC मिल गया है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड दिस AB, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं AC को ऐसे लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज AB प्लस BC एंड दिस इज इक्वल टू 20√3। क्लियर है? AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, जिसमें से हमें AB फाइंड आउट करना है और BC हमें पता है, BC इज 20 and this is equal to 20√3. So therefore we have AB is equal to 20√3 minus 20. ये plus 20 right side जाके हो जाएगा minus 20. So therefore we have AB is equal to 20 into bracket √3 minus 1. Correct? And this is 20 into bracket √3 minus 1 meter. और ये AB क्या है? It is nothing but height of tower, that is the height of the transmission tower, and it is 20 into bracket √3 minus 1 meter. So we have found the height of the tower as 20 into bracket √3 minus 1 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? So the next question given is a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ये ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर ये है सपोज पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर है एक स्टैचू। यहां तक क्लियर है? यहां से यहां तक मैंने कंसीडर किया है पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर ये है स्टैचू, एंड द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर। तो यहां पर मैं ये मार्क कर लेता हूं, इट इज 1.6 मीटर। उसके बाद from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. So this is the top of the statue and this is the point on the ground. तो angle of elevation हमें यहाँ पर कितना दिया गया है? It is given as 60 degree. तो ये angle हो गया 60 degree. उसके बाद and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So this is the top of the pedestal and this is the same point. So if we join this, this angle becomes equal to 45 degree. Correct? और हमें क्या पूछा गया है? We need to find the height of the pedestal. मतलब हमें क्या करना है? ये height find out करना है. ठीक है? तो पहले मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ. This is point A, B, C and this is point D. और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैचू एंड इट इज इक्वल टू 1.6 मीटर, एंड BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल एंड इट इज इक्वल टू, सपोज मैं यहां पर कंसीडर करता हूं h, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है? उसके बाद हमें क्या दिया गया है? दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है? सो सपोज मैं कंसीडर करता हूं ट्रायंगल BCD. सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल BCD वी नीड टू फाइंड दिस BC, और ये है 45 डिग्री. तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल टू अपोजिट इज BC, जो हमें फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट इज CD. करेक्ट? सो tan 45 की वैल्यू है 1, BC हमने कंसीडर किया है h, और ये CD हम लिख लेते हैं एज इट इज. सो देयरफॉर वी हैव CD इज इक्वल टू h. करेक्ट? इसका मतलब वी कैन राइट दिस CD इज इक्वल टू h. तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल ACD. सो इन ट्रायंगल ACD
we can write tan of 60, फॉर्मूला वही है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट साइड 60 के लिए अपोजिट साइड है AC, तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज CD, करेक्ट। tan 60 is √3 and this is equal to AC कितना है, we can write AC as AB plus BC, correct, we can write AC as AB plus BC divided by ये CD as it is रख देता हूं फिलहाल, so this is √3 is equal to AB is given as 1.6 because it is nothing but the height of the statue, correct, plus we have found BC, that is the height of the pedestal, as h. We can write the height of pedestal as h, correct, so CD भी हम लोग h लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है, height of the pedestal is h, और हमने यहां पर लिखा है that CD is also equal to h, this is from equation number 1, correct। अब इसको सिंप्लीफाई करना है and you will get h, ठीक है, so therefore we have √3 into h is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 into h is equal to 1.6 plus h, तो h को एक साइड लेकर आ जाता हूं मैं, तो दिस बिकम्स √3h minus h is equal to 1.6, दोनों में से h कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा √3 minus 1 and this is equal to 1.6, so therefore we have h is equal to 1.6 divided by √3 minus 1, डिनोमिनेटर इरैशनल है तो पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, कैसे रैशनलाइज करना है, √3 plus 1 and √3 plus 1, so this becomes h is equal to 1.6 into bracket √3 plus 1 divided by, this is in the form of a minus b, a plus b, करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, a square minus of b square and this is equal to 1.6 into bracket √3 plus 1 whole divided by √3 square will be 3 minus 1 square is 1, तो 3 minus 1 कितना हो गया, 2 and this is equal to 0.8 into bracket √3 plus 1 मीटर, तो हमें यहां से मिल गया है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और हम यहां पर फाइनल आंसर नोट कर लेते हैं फिर, सो देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल is 0.8 into bracket √3 plus 1 meter. Height of pedestal is 0.8 into bracket √3 plus 1 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, फिगर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फिगर ड्रॉ करने आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर पहले क्या किया है, इन ट्रायंगल BCD वी हैव अप्लाइड द tan 45 डिग्री, और यहाँ से हमें मिल रहा है CD इज इक्वल टू h। एक बार CD इज इक्वल टू h मिल गया, फिर हमने अप्लाई किया है इन ट्रायंगल ACD tan, तो ये हो जाएगा tan 60 एज AC by CD। फिर AC को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट AC एज AB प्लस BC, तो ये आ गया AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CD एज इट इज। अब AB that is the height of the statue is given to us as 1.6। अब ये BC क्या है, that is the height of the pedestal जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ h। उसके बाद CD को हमने इक्वल टू h यहाँ पर प्रूफ किया है, तो यहाँ पर ये h आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है और हमें आंसर आ रहा है 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर इरैशनल है इसलिए इसको रैशनलाइज किया है बाय √3 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर आ रहा है h इज इक्वल टू 0.8 इनटू ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है ये प्रॉब्लम? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building.
तो पहले हम कंसिडर करते हैं ये है ग्राउंड। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूं, सपोज ये है बिल्डिंग और ये है टावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो दिस इज द फुट ऑफ द टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड the angle of elevation is given as 30 degree। उसके बाद and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। so this is the foot of the building and this is the top of the tower और यहाँ पर angle of elevation हमें दिया गया है 60 degree, ठीक है। and what we need to do, we need to find the height of the building if the tower is 50 meter high। हमें यहाँ पर दिया गया है tower is 50 meter high and we need to find the height of this building, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। so this is point A, this is point B, this is C and D। और यहाँ पर मैं पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ। let AB is equal to height of tower and CD is equal to height of building, ठीक है। हमें height of building find out करना है and it is given that the height of the tower is 50 meter, ठीक है। इस height of building को मैं फिर से कंसीडर कर लेता हूं h। यहां तक क्लियर है। now we know that this angle is 90 degree, correct, because it is standing vertically on the ground and this angle is also 90 degree। now if we consider triangle DCB, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, in triangle DCB we can write tan of 30 degree as triangle DCB tan 30 अगर आप लेते हो तो इसके लिए अपोजिट साइड DC, correct। so this is BC divided by adjacent side is BC। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज DC and adjacent side is BC, correct। so tan 30 is 1/√3 and this is equal to DC को हमने कंसीडर किया है H और ये BC as it is, so therefore we have BC is equal to H√3। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। now we consider triangle ABC, so if we consider triangle ABC we can write tan of 60 degree is equal to tan of 60 degree is equal to, which is the opposite side here, AB, correct, and which is the adjacent side, it is BC, correct। और tan 60 कितना है, it is √3। this is equal to AB हमें दिया गया है, that is the height of the tower and it is 50। उसके बाद BC कितना है, this is H√3, correct, BC is H√3। this is from equation number 1, correct। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं and we will get H, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं H is equal to, ये H इधर आ गया, √3 को नीचे ले लेते हैं, so this becomes 50 divided by √3 into √3, so we have H is equal to 50/3 meter, ठीक है। और H क्या है, it is nothing but the height of the building। तो यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, therefore height of building is 50/3 meter। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। So the next question given is two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the pole and the distance of the point from the poles। तो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये है रोड विच इज 18 मीटर वाइड एंड दीज आर द टू पोल्स, ये है पहला पोल और ये है दूसरा पोल एंड बोथ दिस पोल्स आर इक्वल इन हाइट, तो इसको मैं नाम दे देता हूं h। ठीक है, बोथ दिस पोल्स आर इक्वल इन हाइट। नेक्स्ट, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। तो suppose मैं यहाँ पर एक point consider करता हूँ and ये point और इस पोल को join कर देता हूँ और इस point के साथ इस point को join कर देता हूँ। तो the angle of elevation of the top of this pole from this point is 60 degree and the angle of elevation of this top of the pole from this point is 30 degree। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद find the height of the pole and the distance of the points from the pole। हमें क्या करना है, we need to find this height and we need to find this distances। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, डी एंड ई। ठीक है, नाउ द पोल्स आर वर्टिकल, दैट मींस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस ए बी, दैट इज एच, डी ई, दैट इज एच, देन वी नीड टू फाइंड डी सी एंड डी सी। यहां तक क्लियर है। अब ये टोटल बीडी हमें दिया गया है 80 मीटर। इसका मतलब अगर मैंने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको अगर कंसीडर किया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 माइनस x, करेक्ट, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 80। इसका मतलब अगर हमने ये x कंसीडर किया तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा और ये दोनों डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर है। नाउ विल नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स। लेट DE is equal to AB is equal to height of pole and that is equal to h। ऐसे हमने कंसीडर किया है because both the poles are of equal height और उस हाइट को हमने कंसीडर किया है h। उसके बाद it is given that BD, this distance is nothing but 80 meter and it is the width of the road। तो मैं यहां पर लिख देता हूं BD is width of the road and it is given as 80 meter। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर्ड BC as x और BC अगर x है इसका मतलब वी कैन राइट CD as BD minus BC and that is equal to BD कितना है 80, BD कितना है 80 और BC कितना है x, तो ये BC कितना हो जाएगा 80 minus x। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। Now we will apply the trigonometric ratios in both the triangles। तो पहले मैं कंसीडर करता हूं ट्रायंगल EDC। So in triangle EDC we can write tan of 30 as tan 30 के लिए अपोजिट साइड है DE, so this is DE divided by adjacent साइड है CD divided by CD। tan 30 is 1 by root 3 and it is equal to DE कितना है, we have considered DE as h and CD कितना है, it is 80 minus x। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 80 minus x। यहां तक क्लियर है। so therefore we have h is equal to 80 minus x divided by root 3 और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है। now we will apply the trigonometric ratio tan in triangle ABC। so if we consider triangle ABC we can write tan of 60 degree is equal to tan 60 कितना है opposite side that is AB divided by adjacent side that is BC। ठीक है,
तो ये हो गया AB बाय BC। नाउ tan 60 इज √3 एंड दिस इज इक्वल टू AB कितना है h डिवाइडेड बाय BC कितना है इट इज x। ये हो गया h डिवाइडेड बाय x। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है h इज इक्वल टू √3 इंटू x। करेक्ट, h इज इक्वल टू √3 इंटू x। इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला है 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिल रहा है h इज इक्वल टू √3 इंटू x। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। यहां पर भी h है, यहां पर भी h है, इसका मतलब वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड्स। करेक्ट, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड्स भी इक्वल रह जाएंगे। सो वी कैन राइट 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, यहां पर राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा है √3 इंटू x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3x। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस x राइट साइड जाके हो जाएगा प्लस x। सो 80 इज इक्वल टू 4x। करेक्ट, सो देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, 80 डिवाइडेड बाय 4, सो वी हैव x इज इक्वल टू 20 मीटर। करेक्ट, इसका मतलब BC कितना आ गया है 20 मीटर। जो हमें फाइंड आउट करना है BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड CD भी हमें फाइंड आउट करना है। सो CD इज नथिंग बट 80 माइनस x एंड इट इज इक्वल टू 80 माइनस 20 एंड इट इज इक्वल टू 60 मीटर। यहां तक क्लियर है? सो वी हैव गॉट BC एंड CD। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट। हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन में रखकर। करेक्ट, वी हैव h इज इक्वल टू √3 इंटू x। करेक्ट, फ्रॉम 2 वी हैव h is equal to √3 multiplied by x. So this is √3 multiplied by x कितना है 20. So therefore we have h is equal to 20 √3 meter and this h is nothing but height of pole and it is equal to 20 √3 meter. तो height of pole कितना आ रहा है 20 √3 मीटर। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. और यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उस फिगर की हमें पहले सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस फिगर की सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द टीवी टावर। ठीक है, एंड a TV tower stands vertically on the bank of the canal. This means it is 90 degree. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो यहाँ से सपोज एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, मतलब टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन कर दोगे, तो दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद from another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है and from this point the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने इस पॉइंट से इस टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये फाइंड आउट करना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, एंड वी नीड टू फाइंड दिस ए बी एंड
BC। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूं। लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है, BC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनाल। यहां पर मैं हाइट को कंसीडर कर रहा हूं h और विड्थ ऑफ कैनाल को कंसीडर करता हूं सपोज x। यहां तक क्लियर है? नाउ इट इज गिवन दैट CD इज 20 मीटर, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूं, CD इज गिवन एज 20 मीटर। नाउ इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ABC and apply tan of 60 degree, we have फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 के लिए अपोजिट क्या है? AB और एडजेसेंट क्या है? BC। करेक्ट? tan 60 is √3 and it is equal to AB क्या है? It is the height of the tower and BC क्या है? It is the width of the canal। तो मैं यहां से लिख सकता हूं h is equal to √3 into x और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन ट्रायंगल ABD, तो अगर आप कंसीडर करते हो ट्रायंगल ABD एंड इफ वी अप्लाई tan of 30 डिग्री, वी हैव अपोजिट साइड 30 के लिए क्या है? फिर से AB, तो मैं यहां पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, इट विल बी AB अपॉन BD। करेक्ट? tan 30 is 1/√3 and it is equal to AB is h and BD can be written as, BD को हम कैसे लिख सकते हैं? BC plus CD। करेक्ट? so this can be written as BC plus CD। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, so this becomes 1/√3 is equal to h upon BC क्या है? BC is width, ठीक है, जिसको हमने कंसीडर किया है x, और CD क्या है? CD is known to us and it is 20। करेक्ट? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? h is equal to x plus 20 divided by √3 and let this be equation number 2। h को as it is रख दिया है, इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो ये हो गया x plus 20 divided by √3। अब फर्स्ट इक्वेशन में h है, सेकेंड इक्वेशन में भी h है, इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, इसका मतलब वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड्स। करेक्ट? सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट √3x is equal to x plus 20 divided by √3। करेक्ट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 into √3 is 3x is equal to x plus 20। so 3x minus x is equal to 20, that means 2x is equal to 20। तो यहां से हमें मिल जाएगा x is equal to 10। करेक्ट? x is equal to 10 मीटर। इसका मतलब we can write what is x? x is nothing but width of canal, so therefore we can write width of canal is 10 मीटर। ठीक है, एक बार विड्थ आ गई तो वी कैन इजीली फाइंड द हाइट। कैसे? वी हैव h is equal to √3 into x। करेक्ट? so therefore from equation number 1 we have h is equal to √3 multiplied by x, तो ये हो जाएगा √3 multiplied by 10 and h is equal to 10 √3 मीटर and this h is nothing but height of tower। तो यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, height of tower is 10 √3 meter। so we have got the height of tower as 10 √3 meter and width of canal as 10 meter। clear है ये problem? The next question given is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। Determine the height of the tower। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? There is a 7-meter tall building। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेता हूँ which is 7 meter tall। उसके बाद
from a top of the 7-meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है केबल टावर और इसके टॉप से इसके टॉप के लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हमें दिया गया है, वो एंगल कितना है, इट इज 60 डिग्री। करेक्ट, तो यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं 60 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग, सो दिस इज द टॉप ऑफ द 7-meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, सो दिस इज द टॉप ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है, एंड इट इज 60 डिग्री। ये एंगल हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद and the angle of depression of its foot is 45 degree, तो this is the foot of the cable tower, correct। और यहां से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करने के लिए सपोज मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल रहेगा, दैट इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज गिवन एज 45 डिग्री। ठीक है, फिगर समझ में आ रही है। The angle of depression of its foot is 45 degree. So this is the foot and this is the angle of depression, and it is given as 45 degree. And what we need to do? We need to determine the height of the tower. मतलब हमें ये height find out करना है। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ A, B, C, D और E। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। लेट AC is equal to height of tower, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूं H। उसके बाद it is given that DE is the height of the building, so DE is equal to height of building, and it is given as 7 meter। यहां तक क्लियर है। नाउ दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री, बिकॉज बोथ स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। करेक्ट, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब DE विल बी पैरेलल टू BC एंड दिस BC इज पैरेलल टू BE, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, इसी को हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया है, मतलब इसी को पैरेलल ड्रॉ किया है। करेक्ट, सो DC इज पैरेलल टू BE and DE is parallel to BC and this angle is 90 degree। इसका मतलब DCBE क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। करेक्ट, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, DE is equal to BC is equal to 7 meter and we can write DC is equal to BE। यहां तक क्लियर है। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट क्या है, AC है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज AB प्लस BC। करेक्ट, वी कैन राइट दिस AC एज AB प्लस BC, जिसमें से हमें BC पता है 7, सो वी कैन राइट द हाइट, रिक्वायर्ड हाइट H एज AB प्लस BC इज 7। तो अगर हमें AB मिल गया तो वी कैन इजीली राइट द हाइट ऑफ द टावर। करेक्ट, मतलब हमारा टारगेट क्या है, वी नीड टू फाइंड दिस AB। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस BE इज पैरेलल टू CD। करेक्ट, एंड इफ वी कंसीडर दिस CE एज द ट्रांसवर्सल देन वी कैन राइट दिस एंगल एज 45 डिग्री। करेक्ट, हमें क्या पता है, CD is parallel to BE, and if we consider this CE as the transversal, then we can write this angle 45 degree is equal to this angle 45 degree because they form alternate interior angles। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल EDC, we have in triangle EDC we have tan of 45 degree is equal to अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट फॉर्मूला है, 45 के लिए अपोजिट साइड विल बी DE। करेक्ट, सो दिस विल बी DE डिवाइडेड बाय CD। करेक्ट, tan 45 is 1, DE is 7
BE is 7 divided by CD. So therefore we have CD is equal to 7 meter. Correct? CD आ जा रहा है 7 meter and we have CD is equal to BE. Correct? यहाँ पे हमने नोट किया है ये. We can write CD that is BC is equal to BE is equal to 7 meter. यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो हमें BE मिल गया है 7. Now we know that this is 90 means this angle is also 90 degree. Correct? So therefore in triangle ABE, if we apply tan of 60 degree, we can write this as opposite by adjacent. 60 के लिए opposite क्या है? AB. So this will be AB upon adjacent क्या है? BE. Correct? So this will be AB upon BE. यहाँ तक क्लियर है? अब tan 60 कितना है? √3 is equal to AB हमें फाइंड आउट करना है और BE कितना है? 7. ये हमने अभी फाइंड आउट किया है. BE is 7. So this will be AB upon 7. So therefore we have AB is equal to 7 √3 meter. यहाँ तक समझ में आ रहा है? This is vertical to the ground. तो ये 90 है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी एंगल 90 हो गया. और उस ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल ABE में हमने अप्लाई किया है tan 60. तो यहाँ से tan 60 हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट. अपोजिट साइड इज AB, एडजेसेंट साइड इज BE और हमने यहाँ पर BE की वैल्यू फाइंड आउट की है 7. So we have got AB as 7 multiplied by √3. So 7 √3 meter. So therefore we can easily write the height from equation number 1. We can write H is equal to AB plus 7. Correct? It is AB plus 7. So therefore we have H is equal to AB कितना है? 7 √3. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 √3 plus 7. दोनों में से 7 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा √3 plus 1 meter. So we have the height of the tower as 7 into bracket √3 plus 1 meter. तो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर नोट कर लेता हूँ. हाइट of tower is 7 into bracket √3 plus 1 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? So the next question given is, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? As observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ठीक है? तो suppose this is the sea level, ठीक है? And this is the 75 meter हाई लाइट हाउस. ठीक है? उसके बाद इट इज गिवन दैट फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज ऑब्जर्व दैट देयर आर टू शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर एंड दीज टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. मतलब या तो आप लाइट हाउस के ये साइड ले सकते हो दोनों शिप्स को, या फिर लाइट हाउस के ये साइड ले सकते हो दोनों शिप्स को. ठीक है? एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टॉप, the angle of depression of these two ships are 30 degree and 45 degree. तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मार्क करोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करने के लिए पहले आपको यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है. ठीक है? तो ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस. करेक्ट? उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करने के लिए दोनों शिप्स से इस टॉप को कनेक्ट कर लेता हूं. तो इससे इसको कनेक्ट कर दिया. नाउ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 45. मींस ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है? और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. करेक्ट? तो पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं. सपोज दिस इज पॉइंट A, B, C, D और ये आ जाएगा 90 डिग्री. और हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. मींस वी नीड टू फाइंड दिस DC. ठीक है? नाउ
First we'll note down few points. So let AB is equal to height of lighthouse and it is given as equal to 75 meter. ठीक है, and what we need to find, we need to find this DC, that means the distance between two ships. ठीक है, now we know that angle B is 90 degree. उसके बाद this BD is parallel to this line. इसका मतलब अगर हम लोग AD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं then this angle will be 30 degree. Alternate interior angles are equal. वैसे ही this BD is parallel to this line and if we consider this AC as the transversal then we can write this angle as 45 degree because alternate interior angles are equal. ठीक है, now if we consider triangle ABC and if we consider the trigonometric ratio tan of 45, we can write this as opposite upon adjacent और opposite side. ABC में ये एंगल 45 है, इसको opposite side will be AB and adjacent side will be BC. So 1 is equal to AB is 75, BC is unknown, so BC becomes equal to 75 meter. ठीक है, now if we consider triangle ABD, तो in triangle ABD we can write tan of 30 degree is equal to tan 30 के लिए opposite side upon adjacent is the formula. Opposite side is AB and adjacent side is BD. Correct. Now this tan 30 is 1 upon root 3 and this is equal to AB is 75 और BD unknown है. ठीक है, so therefore we can write BD is equal to 75 multiplied by root 3. तो BD हो गया 75 root 3 मीटर. अब रिक्वायर्ड क्या है, CD रिक्वायर्ड है, तो CD कैन बी रिटन एज BD minus BC. करेक्ट, दिस CD कैन बी रिटन एज BD minus BC. करेक्ट, तो यहां पर मैं नोट कर लेता हूं BD minus BC एंड दिस इज इक्वल टू, अब BD कितना है, इट इज 75 रूट 3 माइनस BC कितना है 75, तो यहां पर लिख देता हूं 75 एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन 75, ब्रैकेट में रह गया रूट 3 माइनस 1 मीटर. ठीक है, और ये CD क्या है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो मैं यहां पर फाइनल आंसर नोट कर लेता हूं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन the two ships is 75 into bracket root 3 minus 1 meter. So the distance between the two ships is 75 into bracket root 3 minus 1 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. So the next question given is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब यहाँ पे हमें फिगर भी दी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो अकॉर्डिंगली पहले हम लोग सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ठीक है, तो पहले हम लोग ये ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एंड एक गर्ल ड्रॉ कर लेते हैं एंड द हाइट ऑफ द गर्ल इज गिवन एज 1.2 meter. This girl spots a balloon which is at a height of 88.2 meter from the ground. इसका मतलब हमें ये हाइट दी गई है 88.2 मीटर. उसके बाद
the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. So these are the eyes of the girl and this is the top. करेक्ट, मतलब ये बलून है, ये गर्ल के आईज है और हमने इनको ज्वाइन कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट इज गिवन एज 60 डिग्री. ठीक है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री. इसका मतलब ये बलून आगे मूव हो रहा है और यहां पर आ जा रहा है सपोज, तो इस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है 30 डिग्री. तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं पहले और यहां पर मार्क कर लेता हूं एंगल एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बलून. तो यहां से भी मैं ये परपेंडिकुलर मार्क कर लेता हूं. सो दिस इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ठीक है. और उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल को आगे एक्सटेंड कर देता हूं अप टू दिस पॉइंट. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. मतलब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ठीक है. तो पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं. दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. ठीक है. सो लेट DE is equal to height of girl. Next, CF is equal to BA is equal to height of balloon from ground level, and what we need to find, the distance traveled by the balloon. And what is the distance traveled by the balloon? It is BC, that is distance traveled by the balloon. यहां तक क्लियर है ये भी आपको. ठीक है. नाउ this BD is parallel to HE, correct? BD is parallel to HE and this BE is parallel to BH because the girl stands vertical to the ground. इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, तो DE is parallel to BH, आप ऐसे भी बोल सकते हो, and this angle is 90 डिग्री. इसका मतलब DBHE is a rectangle and rectangle में opposite sides are equal. ठीक है. Now we can write this DE is equal to BH is equal to 1.2 meter and we can also write BD is equal to HE, correct? This BD is equal to HE because opposite sides of rectangle are equal in length. यहां तक क्लियर है. Now we know that this height, that is AB or CF, is 88.2 meter. तो यहां पर मैं लिख देता हूं this is equal to 88.2 meter. यहां तक क्लियर है. So from this we can find this AH, correct? ध्यान देना है यहां पर. This AH can be found by using AB and AH. AB and BH, sorry, this AH can be found by using AB and BH. AB minus BH gives AH, correct? So this is equal to AB कितना है? It is 88.2 minus BH कितना है? BH is nothing but 1.2. ये हमने यहाँ पर भी नोट किया है, correct? So this becomes equal to 87 meter. AH आ गया है हमारे पास. Now in triangle, suppose मैंने triangle consider किया है triangle AHE, तो we can write in triangle AHE tan of 30 degree is equal to, formula क्या है, opposite side upon adjacent side. For 30 degree the opposite side is AH and adjacent side is HE, correct? So this is HE
तो tan 30 इज 1/√3 एंड इट इज इक्वल टू AH कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया है, इट इज 87 डिवाइडेड बाय HE. So therefore we have HE is equal to 87√3 मीटर. यहां तक समझ में आ गया है. We have AH as 87 मीटर and we have HE as 87√3 मीटर. हमें मिल गया है HE, हमें फाइंड आउट करना है GH मतलब BC. करेक्ट. तो अगर हमने GH निकाल दिया, अगर हमने GE निकाल दिया तो हमें GH मिल जाएगा. करेक्ट. अगर हमने GE निकाल लिया तो हमें GH मिल जाएगा बिकॉज वी हैव HE. HE कितना आ गया 87√3. अगर हमने HE में से GE को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें रिक्वायर्ड मिल जाएगा. करेक्ट. सो नाउ इफ वी कंसीडर ट्रायंगल FGE, ये 90 डिग्री है. सो इन ट्रायंगल FGE and apply tan of 60 degree, we have formula opposite upon adjacent and this is equal to 60 के लिए opposite is FG and adjacent is EG. करेक्ट. इसके बाद tan 60 कितना है √3 and this is equal to FG. FG can be written as equal to AH. करेक्ट. FG can be written as equal to AH. तो ये हो जाएगा AH divided by EG and we have this as √3 is equal to, अब AH कितना है हमारे पास, AH is 87 तो ये हो जाएगा 87 upon EG. करेक्ट. so therefore we have EG is equal to 87 upon √3. तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 by √3 and this is equal to 87√3 divided by 3. यहां तक क्लियर है अभी ये. so therefore we have EG as equal to, ये हो जाएगा 3 2 are 6 2 7 29√3 मीटर. ठीक है. EG मिल गया है. अब हम GH फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट. we can find GH as equal to HE minus of GE. HE कितना है 87√3 तो यहां पर मैं लिख देता हूं 87√3 माइनस GE कितना है, इट इज 29√3 माइनस 29√3 and this is equal to 87√3 minus 29√3 will be equal to 58√3 मीटर. करेक्ट. और हमें पता है ये GH मतलब कितना है BC. राइट. we have GH is equal to BC is equal to 58√3 meter and this BC is nothing but the distance traveled by the balloon. करेक्ट. तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं distance traveled by balloon is equal to 58√3 मीटर. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, फिगर समझ में आ गई है. उसके बाद हमने क्या किया है, वी हैव अप्लाइड इन ट्रायंगल AHE tan of 30 डिग्री और उसके बाद इन ट्रायंगल FGE tan of 60 डिग्री. तो पहले ट्रायंगल AHE में अगर आप अप्लाई करोगे tan 30 तो आपको क्या मिलेगा, HE मिल जाएगा. उसके बाद अगर आप ट्रायंगल FGE में अप्लाई करोगे tan 60 तो आपको मिल जाएगा GE. तो एक बार HE और GE आ गया तो हमें बस क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड दैट विल गिव यू GH. और एक बार GH आ गया तो GH is equal to BC. Correct. And that BC is nothing but the distance traveled by the balloon. Correct. So we have got the distance traveled by the balloon as 58√3 meter. Clear है ये problem? The next question given is a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed.
6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट हाईवे और ये है टावर एंड दिस इज द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, सो दिस स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। उसके बाद a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है and he spots a car which is approaching towards the tower and this angle of depression is given as 30 degree। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक horizontal ड्रॉ कर दूं तो this angle is given as 30 degree। करेक्ट, यहाँ पे ऐसा ही दिया गया है, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। तो यहाँ पर एक कार है and it is approaching the tower at a uniform speed। ठीक है, उसके बाद 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। तो सपोज 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर आ रही है and the angle of depression is found to be 60 degree। तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, पहले यहां से टॉप को कनेक्ट कर लेते हैं और ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये कार की कब की पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द कार आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक रीच करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, सी, डी और ये टावर है एंड इट इज वर्टिकल टू द ग्राउंड, तो वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे हम कंसिडर करते हैं ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर इज ए बी। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, ऐसे बोला गया है, इसका मतलब वी विल कंसिडर स्पीड ऑफ कार एज x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ दिस cd is the distance traveled by the car in 6 seconds। correct, this cd is equal to distance traveled by the car in 6 seconds। करेक्ट, और हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, सो मैं इसको कंसिडर करता हूं टाइम टी। ठीक है, सो लेट टाइम टी सेकेंड्स बी द टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम सी टू बी, और ये बी क्या है, फुट ऑफ द टावर, और यही टाइम हमें फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर है ना। वी नो दैट BD इज पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब अगर हम AD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, और अगर हम AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां तक क्लियर है ना। दिस CD कैन बी रिटन एज, अब ये CD क्या है, डिस्टेंस है, करेक्ट, एंड वी नो द फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये CD क्या है, डिस्टेंस है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हमने कार की स्पीड कंसीडर की है x, और टाइम कितना है, C से D तक जाने के लिए, सॉरी D से C तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड्स। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6
and this will be equal to 6x meters. Correct? The distance CD is 6x meter. यहां तक क्लियर है? Now next is distance BC and that is equal to, अब कार की स्पीड तो x ही है, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए मतलब C से B तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? t सेकेंड्स. करेक्ट? तो मैं यहां पर लिख देता हूं x into t and that is equal to x t मीटर. यहां तक समझ में आ रहा है? CD is the distance traveled by this car from D to C in 6 seconds. डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकंड. ये हमने कंसीडर किया है. मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज 6 सेकंड्स. सो x मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया 6x मीटर. ये डिस्टेंस हो गया CD. उसके बाद BC डिस्टेंस कितना है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. स्पीड तो कार की यूनिफॉर्म है, इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाय टाइम को हमने कंसीडर किया है t, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय t दैट इज xt. यहां तक क्लियर है? सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट BD इज इक्वल टू CD प्लस BC एंड दैट इज इक्वल टू CD इज 6x and BC is xt. करेक्ट? and that becomes equal to, दोनों में कॉमन x, ब्रैकेट में बच जाएगा 6 plus t मीटर. now if we consider triangle ABC, तो in triangle ABC we can write tan of 60 degree is equal to, फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड इज AB and adjacent side is BC. So tan 60 is √3 and this is equal to AB divided by BC. और BC कितना है? BC is XT. तो यहां पर मैं रख देता हूं अपॉन XT. यहां तक क्लियर है? सपोज इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल ABD, if we apply tan of 30 degree, we have this as equal to opposite side upon adjacent side. 30 के लिए opposite side है AB and adjacent side है BD. Correct? So tan 30 is 1 by √3 and it is equal to AB upon BD कितना है? BD कितना है? It is x into bracket 6 plus t. तो यहां पर लिख देता हूं x into bracket 6 plus t. Correct? Now here we have AB is equal to √3 into xt. ऐसे लिख सकते हैं हम. अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं तो this can be written as AB is equal to √3 into xt. Suppose this is equation number 1. अब इस AB के जगह पर मैं ये लिख देता हूं. So this is 1 by √3 is equal to √3 into x into t divided by x into 6 plus t. ये कहां से आ रहा है? This is from equation number 1. समझ में आ रहा है? This is √3 is equal to AB upon xt. So we can write AB is equal to √3 multiplied by xt. अब ये AB क्यों फाइंड आउट किया है? So that we can substitute this value of AB here. ठीक है? अब ये x कैंसिल हो गया. हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है. हमें रिक्वायर्ड क्या है? सिर्फ t रिक्वायर्ड. करेक्ट? सो दिस कैन बी रिटन एज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 plus t into 1 is 6 plus t and this is equal to √3 into √3 is 3t. करेक्ट? तो ये हो जाएगा 6 is equal to 3t minus t. करेक्ट? सो वी हैव 3t minus t is 2t. तो ये हो जाएगा 2t is equal to 6. So t is equal to 3 seconds. So therefore we have the time required to travel from point C to point B is 3 seconds. समझ में आ गया ये? तो फाइनल आंसर नोट कर लेते हैं. टाइम required to travel from
C to B is 3 seconds. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? केयरफुली समझ कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है? The next question given is the angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. मतलब सपोज यहाँ पर मैं ये ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद ये है टावर एंड सपोज ये है ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? The angle of elevation are complementary to each other. इसका मतलब अगर मैंने ये एंगल कंसिडर किया है थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? इट विल बी 90 माइनस थीटा. ये समझ में आना जरूरी है. हमें यहाँ पर क्या बोला गया है? The angle of elevation are complementary to each other. अब complementary angles का मतलब क्या होता है? Two angles whose sum is 90 डिग्री, करेक्ट? इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. अब यहाँ पर हमें इन 2 पॉइंट्स की पोजीशन भी दी गई है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. हमें ऐसा बोला गया है कि दिस फर्स्ट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट is at a distance of 9 meter from the foot of the tower. तो ये डिस्टेंस हो गया 9 मीटर, ठीक है? और हमें क्या करना है? We need to prove that the height of the tower is 6 मीटर. हमें ये प्रूफ करना है कि this height of the tower is 6 मीटर. तो पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं. दिस इज पॉइंट A, B, C and D, ठीक है? And what is given to us? उसको पहले मैं नोट कर लेता हूं. So it is AB is nothing but the height of tower. Then it is given that BC is equal to 4 meter and BD is equal to 9 meter. और हमें बोला गया है कि the two angle of elevation are complementary to each other. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये एंगल थीटा कंसीडर किया है, तो ये एंगल अपने आप कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा. यहां तक कंसीडर समझ में आ रहा है? नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है? और हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट दिस AB इज 6 मीटर. तो पहले हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रायंगल ABC. सो इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ABC and apply tan of 90 minus theta, we can write this as tan 90 minus theta is opposite side upon adjacent side. इसके लिए opposite side is AB and adjacent side is BC. अब tan 90 minus theta कितना होता है? It is cot theta, correct? tan 90 minus theta is cot theta and AB हमें पता नहीं है और BC कितना है? ये है 4, correct? So from this we can write AB is equal to 4 cot of theta. Let this be equation number 1. अब हमें अप्लाई करना है tan in triangle ABD. So if we consider triangle ABD, we can write tan of theta is equal to, अब इस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? इट इज AB और एडजेसेंट साइड कौन सी है? BD. सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB को एज इट इज रख देता हूं और BD कितना है? BD इज 9, करेक्ट? सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी हैव AB इज इक्वल टू 9 tan of थीटा. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब यहाँ पे हमें AB मिल रहा है 4 cot थीटा, यहाँ पे हमें AB मिल रहा है 9 tan थीटा, करेक्ट? अब हमें रिक्वायर्ड भी क्या है? AB.
तो ए बी को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसको एलिमिनेट नहीं करना है, वी रिक्वायर दिस ए बी, करेक्ट, बिकॉज ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी हैव ए बी इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय 9 tan ऑफ थीटा। तो ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज 36, cot थीटा को एज इट इज रख देता हूं, एंड वी नो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 by cot थीटा, करेक्ट। tan theta can be written as 1 by cot theta because tan and cot are reciprocal of each other, तो ये cot theta cancel हो गया, so we have AB square is equal to 36, so AB is equal to square root of 36 and this is equal to 6 मीटर। हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज इट इज द हाइट, करेक्ट। इसका आंसर क्या आता है, प्लस और -6, लेकिन हम -6 कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ए बी इंडिकेट्स द हाइट एंड देयरफॉर इट शुड बी पॉजिटिव। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया है कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। Thank you.